Good morning, everyone, and welcome to the Saviors Academy channel. And today, this is 8th class SST period. Welcome, all of you. So, we had earlier in the earlier videos, this is the second video, I guess. So, this is the part 2 of chapter 1 Indian Constitution. Earlier in the first video, we had learned about some aspects of the Indian Constitution, and we had seen the first thing, that what is the purpose of constitution in any country, why any country need a constitution. So let us study all the reasons and all the purposes today and finish off, and let us see why constitution is actually needed for a country to have it. Okay, or every democratic country is not having a constitution. We have also read that. So recap, we have a recap that we had learned this thing, that constitution of India. We had just studied this thing, aspect of the chapter, that there is a football team and uska constitution rules hai, and uske constitutional rules, if we change it, the whole game could change. Constitutional rules वो होते हैं जो बेस रूल्स होते हैं, जो आपका आधार बनाते हैं, बेस. ओके, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, ऐसे रूल्स जो आपका आधार बनाते हैं. सो अगर मैं उनको ही चेंज कर दूंगा, मेन आधार को, तो पूरा चीज़ चेंज हो जाएगा. सिमिलरली अब हम देखते हैं in the next part of the chapter, on the next page number, you will see page number 5. Okay, so आपको हमेशा यहाँ पर पेज नंबर 5 मिलेगा. नाउ इस तरह से हम लोग लेक्चर्स लेंगे. So you can see the page number here and you can refer your book. So we had studied that, we had seen that at the time that of Nehru ji, how Constitutional Assembly was formed and when it was convened, it was all we had studied, and how they had uh, during the Second World War, that we had read that they had the demand for separate constituent assembly. Okay, so we had also read that different democratic countries have different constitutions, and all democratic countries is not likely to have a constitution, but this was seen when we studied this. And here we see the first aspect of the constitution. What is the constitution? What is the first aspect of the constitution? A constitution helps serve a set of rules. उससे पहले हमने पढ़ा था first, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस. तो हमने पढ़ा पिछली बार कुछ पर्पसेस जो सर्व करता है, कुछ उसके पर्पस हैं. वाई डज, अब यहाँ पर एक सबसे पहले क्वेश्चन था, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? सो इट सर्व्स सेवरल पर्पसेस. उसके कुछ पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन के, बेस रूल्स के कुछ पर्पस है. अगर बेस रूल्स है तो कुछ पर्पस है. तो पहला पर्पस हमने जो पढ़ा था पिछली बारी, वो ये था कि वो कुछ ऐसे रूल्स और ऐसे नायाब चीज़ें या आइडियोलॉजीज वो ले करेगा या पुटअप करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन विल ले आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ, या फिर दैट फॉर्म द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन वुड वांट, कि भाई हमें इस तरह से चाहिए. अब क्यों? क्योंकि हम में से अलग अलग मतों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोसाइटी से द पीपल कम ऑफ एंड कंबाइन टुगेदर, राइट. सो वी हैव टू, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो एक सेट ऑफ रूल्स बना रहा है, वो सेट ऑफ पैराग्राफ्स बना रहा है, वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बना रहा है. इट इज सर्विंग एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स in which all the persons of the countries have a mutual agreement. सब लोग अग्री करते हैं और मानते हैं कि हाँ, इस तरह से मेरी कंट्री गवर्न होनी चाहिए, इस तरह से मेरी कंट्री रूल होनी चाहिए, इस तरह से मेरी कंट्री लीड होनी चाहिए, ये इस तरह से लीड करना चाहिए. और ये कोई गवर्नमेंट के टाइप नहीं डिसाइड करेगा, ये सिर्फ बताएगा कि चीज़ें का अरेंजमेंट या आइडियल्स किस तरह से होने चाहिए, और उसके अलावा किस तरह से हमारी कंट्री को अपहोल्ड करने वाले रूल्स हमारे सामने रहने चाहिए. सो हमने देखा था नेपाल के पीपल्स स्ट्रगल के बारे में. भी हैड स्टडीड 6 इयर्स उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को एंजॉय करा. एंड आफ्टर 6 इयर्स किंग ज्ञानेंद्र जी ने, एंड इन द ईयर 2002 ही हैज टेकन बैक ऑल द रूल्स, वापस रोल बैक कर लिए थे. बट अगेन द पीपल्स स्ट्रगल केम इन टू एक्ट, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, दे हैड, द किंग हैज टू रिस्टोर the third parliament and they have to form a constitution. अब आफ्टर दिस उन्होंने क्या करा, सारी चीज़ें, वो एक मोनार्की रूल में थे पहले, तो अब उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने वापस ड्राफ्ट कराया. क्यों? क्योंकि अगर वो पुराने से करते, तो पुराने में तो अभी भी उनके किंग के पास मेन रूल्स या मेन पावर्स थी. सो कभी भी
अगर मैं गेम के आधार रूल चेंज कर रहा हूँ, जैसे फुटबॉल में अगर मैं गेम के आधार चेंज कर दूं तो गेम चेंज हो जाएगा। सिमिलरली जो पहला रूल है या पहला एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाएगा, और ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स जिस तरह से हम चाहते हैं कि इस तरह से वो गेम खेला जाए। अब गेम से यहाँ मेरा मतलब है इस तरह से यहाँ कंट्री, इस तरह से हम एक कंट्री में रहने वाले हो सकें, या इस तरह से हमारी कंट्री को गवर्न गवर्न करनी चाहिए, गवर्निंग बॉडी। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो आज हम पेज नंबर 6 पे, आप अपने बुक्स में पेज नंबर 6 में ढूंढ सकते हैं, वी आर स्टडिंग दैट द सेकेंड पर्पस। ओके, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic, अब पहला second rule क्या है, थोड़ा सा ध्यान से बस देख के रखना। ने important purpose of constitution is to define the nature of country's political system। हम इसको highlight कर लेते हैं, we'll highlight this। क्या है second purpose? To define द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। आप चाहें तो अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो आप इस नोट्स में इन चीज़ों को लिख सकते हैं। दीज आर द पर्पसेस। पहला पर्पस था कि इट सर्व्स एज अ रूल्स। हम लास्ट में देखेंगे व्हेन वी विल रिवाइज, आपको लास्ट में यू विल सी ऑल द पर्पसेस ऑल टुगेदर, बट आपको साथ साथ नोट्स बनाना है तो यू कैन राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड, अब ये क्या करें, टू डिफाइन नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, in countries that have adopted a democratic form of government or polity। पॉलिटी क्या चीज़ है, ये एक नया वर्ड है। ओके, प्लीज इसको भी जॉट डाउन करें। पॉलिटी, द वर्ड मीनिंग इज गिवन एट द लास्ट ऑफ योर बुक, एंड इन द लास्ट ऑफ द वीडियो यू विल आल्सो फाइंड वर्ड बैंक। उसको आपको SW में करने की जरूरत है। यू विल बी जॉटिंग डाउन एवरी वर्ड बैंक आफ्टर एवरी वीडियो। ओके, सो पॉलिटी हियर मीन्स सिस्टमैटिक वे ऑफ गवर्नमेंट या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना। सो विल रीड इट अगेन। in countries that have adopted a democratic form of government, yeah, systematic form of government, which is there is a system, okay, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that, अब यहाँ पर ये देखो, ये रहा सेकेंड पर्पस को और अच्छे से बताया। laying out, it lays out certain important guidelines for whom, for the governing decision making bodies within these societies। अब जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनके लिए रूल बनाया है। क्यों? क्योंकि वो उस रूल का मिसयूज भी कर सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स। एक डेमोक्रेसी में हम चूज करते हैं कि अपने लीडर्स को, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आर बिहाफ। हमारे बिहाफ पे वो पावर को रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से निभाएं। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority। हमेशा possibility एक ऐसी बनी रहती है, एक आशंका बनी रहती है कि वो जो leaders हैं, हमने जो चुने हैं हमारे लिए, वो अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का गलत यूज या मिसयूज कर लें। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट दिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें इसमें से इन चीज़ों से बचने के लिए सेफगार्ड करता है, बचाता है। This misuse of authority can result in gross injustice। और अगर इस तरह का मिसयूज हुआ तो एक बड़ा इनजस्टिस या घोर अन्याय, मैं जैसे बोलूँ, लोगों के साथ हो सकता है या किसी के साथ भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। You'll just see an example on the right hand side. The example is given. You can see your examples in your book also. Let us read the example। आपको example पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह का अन्याय या किस तरह का injustice हो सकता है। Suppose करें सुरेश is the class monitor। You suppose, आप फर्ज करें कि आप क्लास मॉनिटर हैं, आप ठीक है, यहाँ सुरेश नहीं, आप हैं, आप एक क्लास मॉनिटर, यू आर अ क्लास मॉनिटर, यू आर अ बुली, यू नॉट अ बुली, बट सोच के देखें। सो अगेन वी कम बैक टू द बुक। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली। बुली एक ऐसा इंसान होता है जो लोगों की टांग खींचता है या जिसको रौब झाड़ने में, जिसको दबाने में लोगों को मजा आता है, बुली। His classmates are not too fond of him।
क्लासमेट्स पसंद नहीं करते उसको कुछ खास, उसके दोस्त. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. सुरेश क्या करता है, अनिल को बुली करना वापस चालू करता है. अनिल के साथ थोड़ा सा मस्ती का मजाक, मतलब उसको अब छेड़ना शुरू हो जाता है अनिल को. सुरेश, Anil, today I am going to report you to Mrs. Rao. मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा. तो अनिल says, but what I have done? मैंने करा क्या है? और जैसे ही when Mrs. Rao, जो क्लास टीचर थी, वो वापस आती है, return to the class, सुरेश क्या करता है? Ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. और वो चुपचाप से चला जाता है. बट मैम क्या करती है? Anil, you will have to stay back after the school today and write, I will not disobey the class monitor 100 times. अब अनिल बेचारा कह रहा है, बट मैम व्हाट आई हैव डन? मैंने करा क्या? आई हैव डन नथिंग. सो दिस सॉर्ट ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, जैसे यहाँ पर उस मॉनिटर ने गलत यूज करा पावर का, वैसे ही हमारे मॉनिटर्स या हमारे लीडर्स, जो कंट्री के लीडर्स हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करें. तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जो इम्पॉर्टेंट गाइड, वो यहाँ पर लिखे हुए, लेइंग आउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो कि गवर्न मतलब जो राह दिखाती हैं, जो लेके चलती हैं किसको? डिसीजन मेकिंग विद इन द सोसाइटीज. किस तरह से किस तरह से डिसीजन करना है, किस तरह से डिसीजन को बनाना है उसको. So let us now go towards the next segment of the chapter, and that is here. In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by political leaders. In this case, like here, in this case, for example, if you're studying over here, in this case of the Indian Constitution, about which you will read more in the chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental right. ऐसे काफ़ी laws हैं जो आपको आपके fundamental rights के अंदर आएंगे, जो इस तरह से अगर रूल्स मिसयूज होता है या कोई पॉलिटिकल लीडर करता है तो उसे रोकेंगे, रोकथाम करेंगे. उन वो ऐसे रूल्स हैं. Do you recall the chapter on Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in school from your class 7th book? In that chapter, we talked about the discrimination Om Prakash faced because he was Dalit. We didn't read the chapter because the books have changed now, but right now we can read. हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि जो पिछली क्लास में पुरानी अगर NCERT बुक्स होंगी, हमारी नहीं थी NCERT बट इस साल हो गई हैं. सो अब ही वॉज अ दलित. वो एक ओम प्रकाश क्या थे? दलित थे, एक लोअर कैटेगरी ऑफ फील्ड से थे. सो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ बिकॉज ही वॉज अ दलित. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है? राइट ऑफ इक्वालिटी. जहाँ वो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, एक फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी. जहाँ पर मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसी के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता. और किन चीज़ों को लेकर? जाति को लेकर, उनके वर्ग को लेकर, उनके रिलीजन को लेकर, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, उनकी जेंडर को, लिंग को लेकर, उनकी धर्म को लेकर. आई कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, आई कैन नॉट भेदभाव नहीं कर सकता. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. So now, moving to the third purpose of the Constitution that you will find on page number 8. Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group, ऐसा ग्रुप जो मेजॉरिटी हो जिसकी, फॉर एग्जांपल अगर खूब सारे लड़के हैं और खूब सारी लड़कियां हैं, जैसा अभी एक एग्जांपल में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है. ओके, सो क्या है? एंश्योर क्या करता है? ये रहा आपका थर्ड पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, is to ensure that the dominant group does not use its power against the other less powerful
पीपल और ग्रुप्स, ठीक है ना। क्या इंश्योर करता है कि जो ज्यादा मेजॉरिटी में है लोग, वो जो कम जो जनता है, माइनॉरिटी की जनता, उस पर दबाव नहीं डाले या अपनी पावर उसके अगेंस्ट यूज नहीं करे। सो विल सी एन एग्जांपल। द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। सो यहाँ लड़के कह रहे हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट, बट लड़कियां कह रही है लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। So now the teacher decides to settle the problem with the show of hands. अब ये टीचर के पास जाता है, टीचर कहते हैं कि हाथ, you just raise your hands, जिसने हाथ खड़े किए क्रिकेट के लिए वो जीत गए, now क्रिकेट खेलेंगे. So we won, the boy is saying. So now what girl is saying? Obviously there are more boys in the class. अभी तुम लोग ज़्यादा हो तो you will win. There are more boys in the class. Obvious बात है. So now what the girls are discussing here? We always have to do what the boys want because they are in majority. हमें हमेशा वही करना पड़ता है जैसा लड़के चाहते हैं because वो majority में, वो ज़्यादा है संख्या में हमसे. Ma'am should think of another way to make decisions so that our wishes are also heard. सो यही चीज को कॉन्स्टिट्यूशन भी ध्यान में रखते हुए कुछ पर्पस और कुछ रूल्स ऐसे बनाता है और उस पर्पस को सर्व करता है. सच अनहेल्दी सिचुएशंस, ऐसी गैर हेल्दी सिचुएशंस कैन ऑकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज. ऐसी गलत सोच, ऐसी गलत भावनाएं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी आ सकती है. वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन, जहां एक मेजॉरिटी ग्रुप, जैसे वहां लड़कों का था, वैसे कोई भी मेजॉरिटी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट. और माइनॉरिटीज के खिलाफ या माइनॉरिटीज के हित में वो कुछ चीजें नहीं करता और उसके अगेंस्ट हो जाती हैं. एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स, जैसे एग्जाम्पल देता है, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टायरनी. टायरनी, यहाँ एक और वर्ड नया है. टायरनी मतलब ऐसा व्यवहार जो दबाव भरा हो, जो ऑपरेसिंग हो, जो बहुत ज़्यादा आप पे जोर देके ज़बरदस्ती से कराया जा रहा हो, वो. सो एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ मेजॉरिटी. हर सोसाइटी में ऐसी मेजॉरिटी का टायरनी है या इसका प्रभाव है कि वहाँ दबाव, मेजॉरिटी दबाव डालती है. ओके. The constitution usually contains rules to ensure that minorities are not excluded from anything. Okay, so ये रहा detailed. Usually contains rules that ensure the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority या फिर easily. तो जो चीज़ें माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज को इजीली अवेलेबल है, रूटीनली रोजमर्रा में अवेलेबल है, ऐसे रूल्स, ऐसे नॉर्म्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऐसे रूल्स इंश्योर कर बनाता है या जो इंश्योर करें कि वो माइनॉरिटी को भी उन चीज़ों का लाभ हो, उन सारे चीज़ों का लाभ हो जो मेजॉरिटीज लाभ ले रहे हैं रूटीनली. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination. इस tyranny या domination, tyranny देखो यहाँ पर दबाव, tyranny या domination. domination मतलब जो दबाव दे के काम करा जाता है, जो दबाव होता है, जो बेखट के हम दबाव दे के काम करा लेते हैं. ओके. by majority to minority. This can refer to one community dominating another. अब यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है, हो सकता है कि वो एक ही दो कम्युनिटीज अलग अलग हो, जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबा रही है, और वहीं एक और चीज़ हो सकती है कि एक ही कम्युनिटी के अंदर इंट्रा कम्युनिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल एक ही कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग हों जो मेजॉरिटी हैं, हो सकता है कुछ अमीर लोग, खूब सारे अमीर लोग हैं और खूब सारे गरीब लोग हैं, खूब सारे गरीब लोग हैं और कुछ अमीर लोग हैं, तो उन पर दबाव बना रहे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. ओके. सो मेजॉरिटी जो होंगे वो दबाव डालते हैं, तो ऐसा नहीं हो, इस तरह की गलत सोच नहीं आए. सच अनहेल्दी सिचुएशंस नॉट अकर इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी. फॉर दैट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर सम रूल्स एंड ले आउट principles and rules that prevent this tyranny and domination. Now moving on to the next page. Next page would be page number 9. This would be our last page, and this would be the third significant reason
या third significant purpose. The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. हमें हमसे बचाने के लिए. हाँ हाँ, हमें हमसे बचाने के लिए. अब फर्ज करो आप मॉनिटर हैं, जैसे मैंने कहा था यू आर द मॉनिटर. फर्ज करो आपके पास बहुत पावर है, अभी टीचर नहीं है, क्या आपके पास, आपको ऐसा वक्त नहीं महसूस होगा कि आप लालच, कुछ ऐसा टेम्पटेशन आ जाए या आप कुछ ऐसा करें कि जिससे आप अपने मॉनिटर होने का फायदा उठा सकें? सो वैसे ही, या फिर आप कुछ ऐसे रूल्स चेंज कर सकें जो बाकियों के हित में नहीं हो. Similarly, now we'll read. This may sound strange. This may sound strange. This is the third thing, to save us from ourselves. This is the third. This may sound strange. Yeah, बहुत अजीब लगेगा. But what is meant by this is we might at time feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the Constitution helps us guard against this. Look at the storyboard. यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है शबनम, इज इन अ फिक्स, एक कंफ्यूजन में है. शी हैज टू मेक अ डिसीजन. क्या है? I have 2 chapters left to revise for tomorrow's test, but it's time for my favorite TV program. I'm dying to watch it. But if I do that, I won't have time to finish my revision. Shabnam, why are you looking so worried? I want to watch this TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? कोई भी टीवी नहीं देखे. अब शबनम क्या बोलती है कि मेरे को भी टीवी देखना है, मेरे 2 चैप्टर्स अभी रह गए हैं, बट मेरे को बहुत मन हो रहा है टीवी देखने का. आप लोग टीवी देख रहे हो, एक काम करते हैं सब बंद कर देते हैं ताकि मेरा मन ही ना हो और मैं मेरे को लालच आई ही ना टीवी देखने का. सो यहाँ उसने क्या करा, अपने माता पिता या अपने दादा दादी जो इस सिनारियो में है उनका भी टीवी बंद करा दिया. उनके हित में सबके लिए एक ऐसा रूल कर दिया कि नहीं, फ्यूचर में मतलब अभी में इनको प्रॉब्लम हो गई जो इनके हित में था. ये लोग तो टीवी एंजॉय कर सकते थे. सो सिमिलरली अपनी पावर को गलत यूज करना. सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे रूल्स बनाता है दैट हेल्प्स, अभी देखो ये रहा एक और, दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles. जिसका, जो हमने प्रिंसिपल्स क्रिएट करे थे, जो प्रिंसिपल्स हमारी सोसाइटी को रन करते हैं, जो प्रिंसिपल्स हमारी सोसाइटी को गवर्न करते हैं, जो प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने बनाए हैं जिससे आधारित है, अगर हम उनको ही चेंज करना चाहें, अगर हमारे पास ऐसी पावर हो, वो भी हमारे हित के लिए कुछ समय के लिए या हमारे सोच की वजह से, तो वो उन लार्जर प्रिंसिपल्स जो वो हमने क्रिएट करे थे उनको खराब करेगा या उनके लिए एडवर्स होगा. एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, फर्ज करें इट इज़ पॉसिबल that many people who live in democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious. What does acrimonious means? Last में आपको वर्ड बैंक में मिलेगा. acrimonious मतलब bitterness या कड़वाहट, इस तरह से. ओके, स्ट्रांगली फील दैट पॉलिटिक्स हैज बिकम, बड़ी मतलब रूखी सूखी हो गई, कड़वाहट हो गया है, बड़ा ही बेकार सा है. दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर. डिक्टेटर क्या होता है? तानाशाह या ऐसा लीडर जो सप्रेस करके चले, सिर्फ अपनी अपनी चलाए, आप लोग की नहीं सुने. ओके, तो अगर आप ऐसा सोचते हो और आपको लगता है कि नहीं ये सही है और आप एक डिक्टेटर को ले आते हो, खड़ा करते हो, इमोशंस में बह के, स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, दिस मे नॉट, दे मे नॉट रियलाइज दैट इन लॉन्ग रन डिक्टेरियल रूल गोज अगेंस्ट देयर ऑल इंटरेस्ट. जैसा वहाँ हुआ था नेपाल के फर्स्ट केस में, वहाँ पर डिक्टेटोरियल रूल था उस समय भी, और उसने वापस ले लिया राजा ने, ज्ञानेंद्र जी ने वापस ले लिया. एंड इन 2000 अगेन आगे 6 में हमने देखा कि वापस वो दिया गया, वो एक अलग चीज़ था. बट अब हम यहाँ देखेंगे कि लॉन्ग रन में अगर हम ऐसा कुछ सोचते हैं तो वो हमारे
जो वो इंटरेस्ट थे या जो रूल्स थे उनके लिए वो खराब है कि डिक्टेरियल रूल तो हमको चाहिए नहीं था, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों क्रिएट करा। सो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए कि हम अपनी पावर का भी खुद कुछ गलत इस्तेमाल न करें, हम अपनी पावर का भी गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है, एज अ सिटीजन, तो उसका ध्यान हमें रखना है, और वो रूल्स बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीन पर्पस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री में होना चाहिए, ये तीन वजहें थी। हम देखेंगे क्या वजहें हैं इसको एक बार फिर से अपने रिविजन में। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स। विम्स सन की सोच, या एकदम से जब कुछ चेंज कर लेते हैं, टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, कि नहीं ये काम नहीं हो रहा चेंज कर दो, काम नहीं हो रहा चेंज कर दो, नहीं इस तरह से नहीं होता। You don't have to change the whole structure again and again, okay? It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of the citizens and protect their freedom. It does not allow the easy overthrow of provisions that guarantees right of the citizen। जो citizens के right को जो provisions दिए गए हैं उनको उठा के फेंक देने का हक नहीं देता, it does not allow। so यहाँ पर एक ये रहा, it does not, third and the last purpose, it does not allow for the easy overthrow of provisions। कौन से प्रोविजन जो गारंटी करते हैं, क्या गारंटी करते हैं, राइट्स ऑफ द सिटीजन और एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम, उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे रूल्स या ऐसे प्रोविजंस को आप उठा के ओवरथ्रो नहीं कर सकते हो, बाईपास नहीं कर सकते हो, खराब नहीं कर सकते हो, तो उस ऐसा अलाउंस नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। From the above discussion, you will understand that constitution plays a very important role in democratic societies. Okay, so it plays a very important role. So this is the revision. This is where we end the chapter. This is on page number 10. This is not completed. I have completed it. You can go through it properly. आप वीडियो पॉज करो, इसको पढ़ो अच्छे से, समझो। This is your whole revision, whole lot of revision जो अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स क्या हैं और बेसिक उनकी नीड क्या है, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका पूरे क्वेश्चन का एक आंसर हो सकता है। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ो, समझो। एंड दिस इज वेयर वील एंड। दिस इज योर वर्ड बैंक, पॉलिटी, एक्रीमोनियस, और इस तरह से मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं। आफ्टर एवरी वीडियो यू विल फाइंड अ वर्ड बैंक। ये वर्ड बैंक आपको अपनी अपनी कॉपीज में करना है। एंड लेट्स सी क्या काम है आज आपका। सेल्फ वर्क, राइट डाउन द वर्ड बैंक इन योर कॉपी। जो वर्ड बैंक पीछे दिया था उसको वीडियो पॉज करो और जॉट डाउन करो कॉपी में। नेक्स्ट क्या काम है, रीड द चैप्टर एंड रिवाइज। आप एक बार चैप्टर फिर पढ़ें और हो सके तो थोड़ा आगे भी पढ़ें। नाउ हम उससे आगे अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हैं, या देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और डीपली। सो यू नीड टू स्टडी इट, यू नीड टू रीड द चैप्टर एंड यू नीड टू रिवाइज इट प्रॉपरली टाइम एंड अगेन। लास्ट थिंग, stay safe, stay at home, study from home. We are there for you, we care for you. If you have any problem, just message me. Please कॉल ना करें, हम लोग कई बार वीडियोस बना रहे होते हैं या हम कई बार दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। प्लीज़ आप मैसेज छोड़ें या मैसेज करें हमको, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अस टू रिस्पॉन्ड योर प्रॉब्लम्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कुछ अलग चीज़ है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप रिकॉर्ड करके भेज दो ऑडियो, हम सुनेंगे, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वी विल रिप्लाई यू। हैव फेथ इन अस, हम पे भरोसा रखें, हम आप ही के लिए कर रहे हैं, आप ही के बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं। हैव अ नाइस डे अहेड, हैव अ नाइस डे किड्स।